পাশের বাড়ি বলবো সলু কে বলবে জন সিনা, পাড়ায় কেউ মরে গেছে কাঁদ দেবে কে জন সিনা, তখন কে সিলিন্ডার তুলতে যাচ্ছে, কেউ মরে গেছে তোমাকে জীবনও দেখেনি কে মরেছে, কিন্তু না ডেকেছে না গেলে হয়। বন্ধু ধন্যবাদ আনতে গেছে, তুমি ওর পিছনে ধরেছো। বন্ধুর সঙ্গে সময় না দিলে হবে? ওই বন্ধু দুদিন আগে তোমাকে ছেড়েছিল, ওই বন্ধুর সঙ্গে তুমি আড্ডা মারতে চলে যাচ্ছ। আবার ডায়লগ মারবে কি, আমি লোককে ইনভাইটিং করবো না, আমার সেলফ রেসপেক্ট নেই। যে বন্ধু তোমাকে উল্টো পাল্টা বলেছে তার সঙ্গে তুমি আবার মিশছো, আবার ডায়লগ মারছো সেলফ রেসপেক্ট। কোন সেলফ রেসপেক্ট? ডিকশনারিতে মানে নেই। আমি বুঝতে পারছি আমি কি বলছি। এগুলো কি হচ্ছে, এগুলো ন্যাকামো হচ্ছে, ন্যাকামো। আমার লাইফের পেন আমি ডিসাইড করি কোনটা আমি ব্যথা পাবো, কোনটায় ব্যথা পাবো, কোনটাতে ব্যথা পাবো। যেখানে ব্যথা বলে দুটো একটা মানুষ এটা হচ্ছে মাথায় হাত বোলাবে। ওই জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট কি, যত জীবনের দুঃখ রাত্রেবেলা মনে পড়ে, ফোনে ফোনে জানো বাবু আছে কি হয়েছে, ওখান থেকে বলো হ্যাঁ বলো বলো, লাস্টে ফোন রাখার পরে বাবু ভালো হবে দেখো, বলতে পারছি। আজকে সমাজ ওই দিকেই যাচ্ছে, তুমি দেখে নাও। आज का जगत तो वही में है। ये जो 7 हफ्ता बनाया गया, सॉरी हफ्ते में 7 दिन बनाया गया, शुरू हुआ कहां से? कौन सा डे है? रोज डे कुछ एक होगा, रोज डे, टेडी डे, हफ्ते, मेरा ऐसा उलट जाता है, एक एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जिसने मनाया उसको याद है। 7 दिन प्रेम के लिए भी 7 दिन, तो बाकी 358 दिन क्या करें? ना 7 दिन मनाएंगे ना, बाकी दिन क्या करेंगे? बाकी दिन करेंगे क्या? वो तो प्रेम का दिवस नहीं है। मतलब प्यार करने के लिए 7 दिन है ना, तो बाकी दिन करेंगे क्या? उसके बाद का 7 दिन निकल गया। स्लैप डे, किक डे, ऐसे बहुत सारे डे है। जैसे आपके पास एक दिन है प्रॉमिस डे, वैसे एक दिन है वहां पे भी है जहां पे जो प्रॉमिस किया है उसको तोड़ने का भी दिन है। वो क्या प्रॉमिस 7 दिन बाद गायब, और उसको इंसान सेलिब्रेट कर रहा है, उसके लिए दुकान बन रहा है, दुकान में वो रोज मिल रहा है, टेडी मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और उसी को हम देखो फेसबुक में पोस्ट भरे पड़े। 2 किस्म के पोस्ट है, एक पोस्ट जो सेलिब्रेट कर रहा है और दूसरा पोस्ट अरे रोज আমার কেউ নেই, কি কষ্ট হচ্ছে, সব জিনিস বস। এদেরকে জিজ্ঞেস করো তুমি জীবনে সাকসেসফুল হতে? হ্যাঁ চাই, পাচ্ছি। আরে পাবি কি করে? লোকে গোলাতে যে তুই তার পিছনে তাকিয়ে রয়েছিস, তুই কি করে পাবি জীবনে सक्सेस? कहां से मिलेगा बॉस? माइंडसेट क्या है तुम्हारा? तुम जो चाहते हो क्या उसको लेके सिर्फ सोचते हो? तुम्हारा सोच इधर उधर भटकता है और चाहते हो तुम कामयाब बन जाओ। हर साल में हर इंसान के लिए एक दिन आता है बर्थडे, उसमें विश ना करे तो तुम्हें अंदर से तरफ आता है आज के আমাকে বললো না কেউ, তোমার না সবার আগে আমাকে উইশ করার কথা ছিল, এত লেট করে দিলে কেন? আরে যদি উইশ করতোই না তাহলে আমার বয়সটাই বাড়তো, এরকম কেউ থাকলে আমার ব্লক করে দিতাম। উইশ না করলে আমার বয়স বাড়তো না, উল্টো বয়স বেড়ে গেলে আসলে চুলগুলো পেকে যাবে, হতে পারে একটা সময় গেলে মাথায় চুলই থাকবে না। ও উইশ করছে বলে ওর জন্যই সব প্রবলেম হচ্ছে, তো ওকেই রাখবো না পৃথিবীতে, জন্মদিন দিন ওকে মেরে ফেলবো। থাকে তো এটা কিসের বার্থডে, ওর ইমোশন কোথায় বার্থডে সেলিব্রেশনে? বার্থডেতে কাটছে কি বাবুজি কে? এখন बाबूजी को स्टैंडर्ड बेड़े 150 টাকা दाम रखे, बाबूजी के की बॉस 150 रुपए का केक नहीं है, फोम है, उसमें क्रीम नहीं रहता, उसमें कुछ टेस्ट नहीं रहता, वो ऐसे खाने में अच्छा लगता है क्योंकि 150 रुपए दिए, और खाने में अच्छा लगता है क्योंकि असली केक खाए नहीं। 150 रुपए का केक खाने खाता तो कम है, इसे लगाता जाता है, पैसे का बर्बादी होता है बॉस। और उस दिन उसको सबसे ज्यादा उम्मीद है, आज मुझे सब
कोई विश करेगा, सिर्फ विश नहीं करता, मतलब इंसान कितना भिखारी है सोचो। जिसने जिसने उसको विश किया उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगाता है। जिससे कोई बोले दे रे সবার তোকে উইশ করেছে, আরো ভিখারি আছে, আরো ভিখারি আছে। ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে প্রোফাইল বানাবে, ওখানে লিখে দেবে উইশ মি এট, ভিখারি লাগছে। উইশ আবার ভিক্ষা চাইছে যে আমাকে এই দিন কিন্তু বলবে হ্যাপি বার্থডে, আর ওটাকে অনেকে অনেকে আবার লিখেছে আই ল্যান্ড অন, ও ইউএফও, ও জন্মায়নি, ও ল্যান্ড করেছে। এদের আবার নাকি সম্মানের খিদা, এরা আবার সমাজে পরিচিতি চায়। ভিখারি আবার কিসের পরিচয়? বুঝতে পারছেন ভিখারি মানে কি? ভিখারি মানে কি? যার যেটার অভাব সে যেটা চেয়ে অর্জন করে না, চেয়ে পায়। যে টাকার অভাব টাকা চেয়ে পাচ্ছে, রাস্তায় বসছে, আর এরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বসছে, এরাও ভিখারি। তোমাকে আমাকে সাকসেসফুল হতে গেলে ভিখারির থেকে দূরে থাকতে হবে। এদেরকে হেল্প করো, এদের কাছে ইনকাম করার রাস্তা নেই বা এদেরকে কেউ কাজ দিচ্ছে না, এই জন্য এদেরকে চেয়ে খেতে হচ্ছে। এদেরকে হেল্প করো আর এদের থেকে দূরে থাকো। আমি বুঝতে পারছি আমি কি বলতে। সমাজে উল্টো হয়, সমাজে লোক এদেরকে ধিক্কার করে, এদের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে গেলে থুতু করে, উল্টো পাল্টা ব্যবহার করে, আর এদেরকে আপন মানায়। কেন? কারণ তুই এটা লাইক করলে আমিও এটা লাইক পাবো, স্বার্থের সম্পর্ক হয়। এদের সঙ্গে মিশলে কোনো ফায়দা নেই, এই জন্য এদেরকে দূরছাই করে। এদের সঙ্গে এরাই বন্ধু বান্ধব, এদের সঙ্গে মিশতে হবে, মিশলে ফায়দা আছে, এই জন্য এদের সঙ্গে মিশে। আর এদের মাঝখানে আমরা রয়েছি, এদেরকে যারা বন্ধু বান্ধব ভাবি। আর এই মানে কালচার যদি আমার থাকে, এর বন্ধুর কালচার যদি থাকে, এরকম অ্যাসোসিয়েশন থাকলে আমি কোনদিনও জীবনে পড়ে যাই। তো পাকে পদ্মটা অতটাই সোজা হলে পুরো পাক পর্দাতে ভর্তি থাকবে। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? आप इस समाज में रहोगे, इस समाज में रहने के बाद भी पाक में कमल तभी खिलता है जब कमल को खिलने के लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। उस कीचड़ से उसका वो जो पहले का जो ऊपर का परत है वो अटक जाता है, उसको फाड़ के निकलता है। तो क्या आप कोशिश कर रहे हो इस समाज से निकलने की? समाज से निकलने के लिए आपको पहले दिन से यह पता होना चाहिए कि मैं गलती से पाक में आ तो चुका हूं, लेकिन मेरा जगह यहाँ पे नहीं है, मेरा जगह बगीचे में, मेरा जगह फूलों के दुकान पे है, मुझसे भगवान का पूजा तक होगा। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको पहले दिन से पता तो होना चाहिए कि आप यहाँ पे पैदा गलती से हो गए हो, लेकिन आपको यहां से निकलना है। तो आज आप में जिस समाज में है, जिस सोसाइटी में है, जिस एसोसिएशन में है, वहां पे गलती से आ तो चुके हैं। क्योंकि कहां पे जन्म लेंगे, किसके साथ बड़े होंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन से आपने क्या बदलाव लाया। स्मार्ट वेल में जब पहले मैं आया था, लगभग पहला 1 महीना मुझे समझ में नहीं आता था ये सिस्टम क्या है, क्योंकि नेचुरल बात है। तब मुझे मोटिवेशनल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा बोरिंग लगता था। मेरे घर पे मतलब क्लास 12 के बाद से मेरे घर पे कंप्यूटर था, तो मैं ज्वाइनिंग कर गया था। ज्वाइनिंग करने के बाद विकास से मेरे घर पे आते थे, तो विकास से आके मेरे कंप्यूटर में मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है और मैं दूसरे रूम पे जाके WL मैच देख रहा हूं, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल ट्रेनिंग पसंद नहीं है, बोरिंग लगता है, नींद आता है और लगता है एक ही चीज बार बार बोल रहा है। मुद्दा फांडा तो कुछ करते हो, बाकी कत सुने लाभ हमारा भावना चाहिए। 1 महीना तक ऐसा चलता गया, लगभग 1 महीना है चलता गया। एक दिन मैं क्लब से लौट रहा हूं। क्लब में क्यों जाता था? कैरम खेलने, अच्छा लगता था कैरम खेलने। अच्छा वहां पे दोस्त लोग थे, उन लोगों से कैरम खेलता था। उन लोगों को इनवाइटिंग करने के बाद भी नो खाया था, उन लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन उनके साथ भी जाके मैं कैरम खेला। तो विकास ने पूछा वहां पे क्यों जाता है, तो मैंने विकास को ट्रेनिंग का डायलॉग चिपका दिया। ट्रेनिंग में बोलता है ना, कुछ अगर शुरू करो तो बीच में रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने कैरम खेलना शुरू किया है, इसको बीच में कैसे छोड़ू? ट्रेनिंग में ही तो बोला जाता है बीच में, जो विकास ने दिया था। उसके बाद से ना मैंने उस क्लब के ऐसे कोई क्लब के ऊपर देखा, और ना ही उस दिन के बाद से मैंने किसी भी दोस्त के साथ दोस्ती रखा।
मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना, आप किसको चूज कर रहे हो, या फिर सक्सेस तो सक्सेस रिलेटेड माइंडसेट, सक्सेस रिलेटेड एसोसिएशन, या फिर अगर सक्सेस नहीं चाहते हो तो जो जो चाहिए वो जो कर रहे हो वो करते रहो। सक्सेस के लिए जो जो चीज चाहिए वो पसंद हो या ना हो करते रहना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? आपको फोन नहीं करना पसंद, करते रहना पड़ेगा। आपको बात नहीं करना पसंद, बात करते रहना पड़ेगा। ट्रेनिंग लिखना नहीं पसंद, ट्रेनिंग लिखते रहना पड़ेगा। सुनना नहीं पसंद, ज्यादा करके सुनते रहना पड़ेगा, जिससे यही हैबिट बन जाए। क्लियर? जोर जबरदस्ती हैबिट बनाओ, क्योंकि वही हैबिट आपका जिंदगी बनाए। तो या फिर हैबिट बदलो या फिर जिंदगी बदलो। हैबिट नहीं बदलोगे तो जिंदगी बदलेगा नहीं। जैसे चल रहा है वैसे चलता जाएगा। ट्रेनिंग में एक बहुत अच्छा बात सुना था कि कई पूर्वजों का ताकत लगा था, मेहनत लगा था, हमें ऐसा घड़ी बनाना है। आज ऐसा जिंदगी हमें देने के लिए कई पूर्वजों का मेहनत है, बर्बादी है। ऐसे बर्बाद ऐसे नहीं हुए, यहाँ पे कई पूर्वजों का कोशिश है। সবার একটাই মাইন্ডসেট ছিল টাইম ট্রেডিং করব, সবার একটাই মাইন্ডসেট ছিল করব, খাটবো, পয়সা। ওই জন্য আজকে আমাদের জীবনে সবথেকে বেশি অভাব কিসের? পয়সা। सब पैसे के पीछे भागे और जिसके पीछे भागता है वो कभी मिलता नहीं। कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कभी गाड़ी को पकड़ पाया? कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तुम क्या करोगे? देवे কি করবে? পালাবে। তুমিও টাকার পিছনে বলছো, টাকাও তোমাকে ধরা দেবে না, ও পালাবে। এত কয়েকশো বছর ধরে সবাই টাকার পিছনে দৌড়েছে আমাদের খানদানে। ওই জন্য আমাদের জীবনে সবথেকে বেশি অভাব কিসের? টাকা। বুঝতে পারছি আমি কি বলতে চাইছি? এই যে কয়েকশো বছরের মেহনত, তোমাকে সেটা চেঞ্জ করতে গেলে একটু ভাই কষ্ট করতে হবে। এইভাবে থোড়ি হয়। আরে এটাও বাজাতে না, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে কয়েকবার। এরকম না জন্মেছিলে হাতটা নরম নরম বেড়েছো কেমন না বস, এই কথা বলতেও শিখতে হয়েছে, পেনটা ধরে লিখছে ওটাও শিখতে হয়েছে। তার জন্য কয়েকবার কানে গোড়া চড় খেতে হয়েছে, লিখতে পারি না, তা ওখানেও ব্যথা হয়েছে। আর ব্যথা থেকে যেটা পেয়েছি সেই শিক্ষাটাই আছে কাজে লাগছে। পালিয়ে যদি সেদিনকে যেতাম, আচ্ছা লেখাপড়া জানতাম, আচ্ছা কথা বলতে পারতাম না, বোবায় করে বেড়াতে হতো। আমি বুঝতে পারছি আমি কি বলতে চাইছি। কথা বোঝাতে পারি না, কারণ কথা তো ছোটবেলায় ভুল বলেছি, অনেক শব্দ বলা উচিত না বলেছি। আমার মাকে যেমন করতো, কোনো যদি ভুল কথা বলতাম এরকম মুখে মারতো, এবি ডেঞ্জারাস। রাউ তো না, আরে গালে মারো, পিঠে মারো, ঠিক এরকম মেরে দেবো। নিজেকে মেরে দেখো, বুঝবে কতটা লাগে, হেভি লাগে, ঢেকে যেতাম। কিন্তু ওই যে করেছে, ওই জন্য আজকে মুখ থেকে খারাপ ওয়ার্ড বেরোনোর আগে মাথায় 10 বার আগে ভাবনা চলে एका तुम ही प्रॉब्लम फेस कर ना, अकेले हमारे जिंदगी में ऐसा नहीं है। दिक्कत हर इंसान के जिंदगी में दिक्कत है, हर इंसान के जिंदगी में प्रॉब्लम है। मेरा बचपन से जिंदगी में प्रॉब्लम है, ऐसे मेरे साथ लाखों इंसान है मेरे जैसे जिनके जिंदगी में बचपन से प्रॉब्लम। बहुतों ने प्रॉब्लम बाद में जाके देखा, बहुतों का प्रॉब्लम पहले पहले। मैं उस दिन एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में एक इंसान के बारे में बोला जा रहा 1998 में जिसने आईआईटी कंप्लीट किया। कब? 1998 में आईआईटी कंप्लीट करने के बाद कैलिफोर्निया में जाकर नौकरी किया। नौकरी में पैकेज उसको कितना मिला? सालाना $1 मिलियन। $1 मिलियन एक साल में कमाए। टॉप पैसा कमाते 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 एक बिजनेस खोला। उस बिजनेस में एक साल में फिर से $1 मिलियन का प्रॉफिट। उसके बाद एक घर खरीदा $2 मिलियन देके। 4 साल बाद घर को बेच दिया, कितना कमाया? $8 मिलियन, मतलब 4 गुना प्रॉफिट। ऐसे चलते 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 सक्सेसफुल बना। 2008 साल में सेंसेक्स क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया। स्टॉक मार्केट गिरा, उसका जितना प्रॉपर्टी था, जितना कुछ था, सब गिर गया। क्या किया, क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा, पैसे का नुकसान हो गया, चिड़चिड़ा रहने लगा। चिड़चिड़ा रह के काम कैसे करे, काम करते करते नौकरी से उसको निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या करेगा, कैसे निकलेगा, कुछ समझा नहीं। सुसाइड नोट में लिख दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। खुद के साथ साथ अपने बीवी, अपने माँ और 2 बच्चे को गोली मार के मार दिया।
इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो बंदा मरा उसके बैंक में अभी खत्म, उसका टोटल प्रॉपर्टी अभी भी $1 मिलियन का है। $1 मिलियन मतलब आज के दिन में 8.5 करोड़। 8.5 करोड़ रुपए रहने के बाद में एक इंसान क्या बोला, मेरे पास कुछ करने का नहीं है, इसलिए मैं यही लास्ट है। खुद को भी मारा, खुद की फैमिली को भी मार दिया। 8.5 करोड़। আর আমরা এক মাসে 8 টাকা পকেটে না থাকলে এক মাস চালিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কেন মানুষটা ভালো না? কারণ 52 বছর বয়সে কোন লাইফে প্রথম প্রবলেম আসলো, বুঝতে পারেনি কি করে ফেস করবে। আমি বুঝতে পারছি আমি কি বলতে চাইছি। बहुत लकी है हम, जिंदगी के पहले दिन से प्रॉब्लम अगर फेस करें बहुत लकी हो। प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप उसमें ताकतवर बनने को। एक समय था, एक शिष्य को एक गुरु ने एक कार्य दिया था, एक बड़े से चट्टान में जाके उसके बड़े से पत्थर को धक्का देके नीचे गिराना, क्योंकि वो पत्थर अगर नीचे नहीं गिरा तो वहां से रास्ता नहीं बने। तो गुरु का बात सुनकर शिक्षक प्रतिदिन, मतलब वो छात्र जो था प्रतिदिन जाता था, प्रतिदिन उस बड़े से पत्थर पर चाय को धक्का दे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो गया, पत्थर हिला तक नहीं। नेक्स्ट दिन गया, वो ये सोच के ये तो हिलेगा ही नहीं, इसमें कुछ होगा ही नहीं, क्या ही होगा, ये क्या कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जब धकेलने गया तब देखा पहले दिन की तुलना में आज उसके बॉडी में ज्यादा स्टेबिलिटी है, उसका पैर ज्यादा मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है, उसका हाथ में बल आ चुका है जो पहले दिन नहीं था। तब उसको समझ में आया वो सिर्फ पत्थर को नहीं धकेल रहा था, वो खुद को भी धकेल रहा था। मैं समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आपके जिंदगी में जब प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम को जब धकेल रहे हो, प्रॉब्लम को नहीं धकेल रहे हो सिर्फ, आप खुद को भी धकेल रहे हो, खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा है, खुद को भी आगे लेके जा रहे हो, सिर्फ प्रॉब्लम को आगे लेके नहीं जा रहे। आपका भी पावर बढ़ रहा है, आपका सेल्फ मेंटलिटी बढ़ रहा है, आपका सोच बढ़ रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस दे रहे हो। प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक सीख है जो अब ऐसे नहीं सीखते इसलिए ऐसे आया। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। परीक्षा के समय किसको हर क्वेश्चन आसान लगता है, और उसी परीक्षा में उसी क्वेश्चन पेपर किसको मुश्किल लगता है। जो पूरा साल पढ़ता है उसके लिए आसान है, क्योंकि पर डे थोड़ा थोड़ा करता गया, और जिसके लिए वो अचानक आ गया, जिसने पढ़ा ही नहीं था, उसके लिए मुश्किल है। मतलब ऐसे जब आया था वो समझा नहीं तो घूम के आया। ऐसे मतलब अगर हर पर डे अगर प्रिपरेशन लेता तो आसान रहता, पर डे नहीं लिया इसलिए घूम के वही चीज प्रॉब्लम हो गया। जब उसको प्रॉब्लम हो रहा है, टफ बोल रहा है, क्वेश्चन पेपर कितना मुश्किल था। अरे पहले दिन से पढ़ते तो क्वेश्चन पेपर मुश्किल कभी लगता ही नहीं। आज से अगर आप और मैं काम करना शुरू करें, आज से अगर सेल्फ डेवलपमेंट करें, आज से आप जितने समय काम कर रहे हो, कोई भी काम करो, आपको ट्रेनिंग लेना नहीं आता, अगर आप आज से समझ जाते कि क्या चीज आप अच्छे तरीके से ले सकते हो, कौन सा चीज आप अच्छे तरीके से ले सकते हो, जो आपको कनेक्ट होता है। गाना सबसे इजी चीज है जो हमें अच्छा लगता है, गाना। अच्छा, कौन सा गाना क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि उस गाने के कुछ ऐसे गाने में कुछ ऐसे लफ्ज है जो लफ्ज आपको और मुझे अच्छे तरीके से समझ में आता है, जो हमारे जिंदगी में शायद हुआ है, इससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। क्लियर? गाना को हमने समझ लिया। तो ट्रेनिंग में भी ऐसा कुछ वर्ड्स है, जो बातें हैं पूरा ट्रेनिंग में हो सकते हैं, एक लाइन जो आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, उस एक लाइन को लिखो। ऐसा नहीं कि एक लाइन था, एक लाइन आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट दिन आओगे, एक लाइन लिखते लिखते नेक्स्ट 1 महीना बाद देखो आप 10 लाइन लिख पा रहे, क्योंकि तब 10 लाइन कनेक्ट हो रहा है। 2 महीना 3 महीना बाद जाओगे, देखना आप 1 पेज लिख पा रहे हो। ऐसे ही शुरुआत होती है। आप किसी को इनवाइटिंग करने जा रहे हो, किसी को स्ट्रेंजर करने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है। डर का सबसे अच्छा काम क्या है? पहले दिन पढ़ाई करने बैठे तब भी डर लगा था, क्या किए? थोड़ा थोड़ा। कौन सा पढ़ाई करना अच्छा लगता था? जिस बुक में इमेजेस रहते थे, पिक्चर रहता था, मजा आया। तो आप वीडियो देखो कि कहा कैसे बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए क्या करो? मूवीज देखो, जो मूवी फन लविंग मूवी है, उस मूवी में देखो कि अनजान इंसान के साथ इंसान कैसे बातचीत कर रहा है। स्ट्रेंजर आप देख रहे हो अभी ज्वाइनिंग करके, आप देख रहे हो आज आपको इनवाइटिंग करना पड़ा। 1971 में आनंद मूवी निकला था, उस मूवी में राजेश खन्ना स्ट्रेंजर का था, अनजान इंसान के साथ बातचीत कर रहा है, परिचय बना रहा है।
आप और मेरे कई साल पहले से ये चीज चल रहा है, ये दुनिया में ऐसे ही चल। आपका और मेरा पहला दोस्त भी स्ट्रेंजर ही था। यस और नो? बातचीत करते करते खुद को अच्छा अच्छा पॉइंट बना, रिलेशन बन गया, दोस्ती रह गया। स्ट्रेंजर हो, ये इनवाइटिंग हो, कोई भी क्लब्स, अबे कुछ कोई अच्छा चीज होगा वही आपके साथ कनेक्टेड हो जाए। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? और ज्यादा टाइम नहीं है और मैं 5 मिनट बात करूं। क्लियर? अच्छे से समझ। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, यही बिजनेस का मेन मूल मंत्र है। कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रॉब्लम क्या है? हमारे इमोशन को हमें चैनलाइज करना नहीं आता। क्या करे उस इमोशन को? आपके पास दो ही चीज है, या फिर उस इमोशन से आपको जो चीज चाहिए पकड़ लो। आपका इमोशन किस लिए है? आपको घर में माँ बाप से पैसे के लिए बात सुनना पड़ता है, तो पैसा कमाते हैं। क्लियर? किसी के दोस्त के पास बाइक था, आपने उस बाइक को टच किया, दोस्त ने बाइक टच करने पे बेइज्जती किया, तो आपको बाइक खरीदना। क्लियर? आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, आपके सबके सामने में जाने में शर्म लगता है, तो कपड़ा खरीदना। ये क्या है? ये इमोशन के पार्ट है, जो पार्ट आज आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को मिटाएगा, मतलब आपका छोटा छोटा सपना पूरा करेगा। क्लियर? दूसरी तरफ क्या है? वही सपना, वही चीज, वही दिक्कत सिर्फ आपके पास नहीं है, ऐसा दिक्कत आपके और मेरे जैसा हजारों लाखों बच्चों का है। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसे मुझे ड्रिवन करना पड़ेगा खुद को, जिससे हजारों लाखों बच्चे के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊं। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? हजारों लाखों बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन बन पाऊं, जिससे वो हजारों लाखों बच्चे मुझे देख के वो जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है उससे निकल पाए। आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा चाहिए। एक तरफ आपका सपना है, दूसरी तरफ आपका सपना समाज के लिए बन रहा है, तब वो सपना नहीं, तब वो दायित्व बन गया, कर्तव्य बन गया। तो या फिर आप कर्तव्य पूरा कर सकते हो, या फिर आप सपना पूरा कर सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज, दोनों पूरा हो नहीं सकते। आप या फिर कर्तव्य पूरा कर सकते हो, या फिर आप सपना पूरा कर सकते हो। सपना पूरा होगा तो आपके पास जो चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन पूरा कभी कभी नहीं भी हो सकता। क्यों? कोई इंस्टेंट इमोशन से आया, और इमोशन ऐसा चीज है, इमोशन मतलब खुला सांड जैसा। अगर सांड को बांध पाए तो सांड काबू में रहेगा, लेकिन अगर खोल गया काबू से बाहर। तो हमारे इमोशन फ्लैक्चुएट होता है ऐसे। आज इसमें है, कल कोई और बेहतरीन चीज देख लिया तो उसमें चला जाएगा, किसी और चीज में देख लिया तो उसमें चला जाएगा। आज माँ के ऊपर गुस्सा है, कल प्यार आएगा, कल माँ के ऊपर प्यार नहीं आएगा, बाप के ऊपर आएगा, कल माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा, कोई लड़के लड़की के ऊपर आएगा, बदलता रहेगा इमोशन। लेकिन दायित्व कर्तव्य क्या होता है? ये इमोशन नहीं है, ये सोच है। सोच को ठानना पड़ता है, और सोच ऐसे एक दिन में नहीं बनता। उसको आहिस्ते आहिस्ते बुनना पड़ता है, उसको पर डे नरिशमेंट करना पड़ता है। उसको छोटे से, मतलब वो छोटे से बीज है ना, बीज, पेड़ का जो बीज होता है, इस बीज को ऐसे बड़ा होकर वृक्ष बनना है। वैसे आपको इस इमोशन को पर डे नरिशमेंट करते 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 उसके बड़ा वृक्ष बनाना है, जिसके अंदर हजारों इंसान छाव ले पाए। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे घर में जब प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट दिन, जब इमूर्जा बोल रही थी एक बात कि शैम्पू के लिए ताना सुनना पड़ता, तब मुझे याद आ गया कि मेरे समय में क्या होगा। क्योंकि मुझे बचपन से बाल अच्छा रखना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा एक ही मोटो था कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ बनता है। देखो स्मार्ट वाले का प्रोडक्ट निकला है कुछ दिन पहले ना, क्या कॉस्मेटिक किट या कुछ निकला है, 4 लिपस्टिक, 4 और क्या हो, आईलाइनर 4 नहीं, अरे नेल पॉलिश 4, आईलाइनर, मस्करा वगैरह वगैरह, कितना कुछ निकला है लड़कों के लिए। उसमें एक ही काम का चीज है, कंघी, चिरुनी, চেহারা যে আর কি আছে বস। আমার দিদিকে দেখেছি মুখে কত কিছু মাখছে, মূলতানি মিট্টি থেকে শুরু করে ফাউন্ডেশন, এই সেই, আমি জলমাল্লা হয়ে গেল। আমি জানি ছেলেদের জন্য কিছু নেই, এখন বুঝতে ছেলেরাও মেকআপ করে, ফেসিয়াল করে, কত কিছু করে। আমার একদম পছন্দ না বস। আমার
আমার মনে হয় আজকে ফেসিয়াল করলাম, করেছি আমি, এমন না জীবনে কোনোদিন করিনি, দেখার জন্য কি হয়, পুরো পয়সা ধ্বংস হয়। এই করলাম, বাড়িতে কিন্তু মুখে জল দিয়ে দিচ্ছে, আবার কালো হয়ে গেছে। পরের দিন রোদে বেরোনো যাবে না, ধুলো লাগানো যাবে না, তাই মানুষরা মিউজিয়ামে থাকে, কাঁচা বন্ধ হয়ে যাবে, তো বেকার জিনিস। একটাই জিনিস আছে, চুল। তখন দাড়ি বাড়ি ছিল না, দাড়িটাকে যত্ন করতাম, চুলকে যত্ন না করতাম। তার জন্য কি লাগবে, ভালো ভালো সময় শ্যাম্পু কন্ডিশনার করতে। আমার শ্যাম্পু কন্ডিশনারের হেভি শখ ছিল, তো ডাব কোম্পানি পাওয়া যায়। প্রবলেমটা এটা, ইঞ্জিনটা স্টার্ট হয়ে গেল, থামে না, তার মধ্যে আবার আধা ঘন্টা 40 মিনিট, আধা ঘন্টা 40 মিনিট কিছু হয়, জামা কাপড় পরতে হতে বেশি সময় লাগে। একটু ভালো করে যাই যাবে আজকে হলে এসে এরকম ভাবে গলিয়ে স্যান্ডউইচ মধ্যে চলে এসে রেডি হতে আধা ঘন্টা বেশি সময়। এই আধা ঘন্টা আমি ট্রেনিং করাচ্ছি, এটা তো পসিবল না। যাই হোক, 5 মিনিট আর কমিউনিকেশন করবো, যেটাই বলছিলাম। তো শ্যাম্পু করার হেভি আমার শখ ছিল। তো সানসিল্কের কন্ডিশনার পাওয়া যায় না, এখন পাওয়া যায় নাকি জানি না। ক্লিনিক প্লাসের তো জীবনে পায় না, তো গাড়ি ধোয়া হয়, সাইকেল পরিষ্কার করতাম ক্লিনিক প্লাসে যাবে, তো ওটা মাথায় লাগানো যাবে না। আমার মায়েরা বলতো সার দিনে মাছ ধরতো। যাই হোক, আমি কিনতাম হলো ডাব কোম্পানির শ্যাম্পু প্লাস কন্ডিশনার। আলাদা করে কিনলে 5 টাকা, আর একসঙ্গে একটা প্যাকেট পাওয়া যেত, ওর মধ্যে কন্ডিশনার এই পাতা এইদিকে থাকতো, এইদিকে 4 টাকা দাম। সপ্তাহে এবার 3 দিন শ্যাম্পু করতো, একদিন বাদে বাদে। আমার মা আমাকে বলতো কোন কোম্পানিতে কাজ করতো, 4 টাকা শ্যাম্পু করার মুরত নেই, এরম ভাবে বলতো না। আমি হেসে বলছি, এরম ভাবে বলতো না। মায়েরা কোনদিন হেসে কথা খুব কম বলে, তখন বলে যখন মায়েদের মোটামুটি জায়গা দরকার পেয়ে গেছে। তার আগে মায়েরা হেসে বলে না, মায়েদের মুখ পরে চলে, আগে হাত চলে। ঝাড়া থাকলে ঝাড়া ছুরি মারবে, খুন্তি থাকলে খুন্তিতে পিটিয়ে দেবে, জুতো থাকলে জুতো ছুঁড়ে মেরে দেবে, হেডশট। মায়েদের মুখে এইভাবে চলে। আর মা আমাকে মাঝে মাঝে বিশাল ভয়ঙ্কর লেভেলে গালাগালি দিবে, খারাপ লেগেছে, কষ্ট লেগেছে, কিন্তু শ্যাম্পু মাখাও ছাড়ি। টাকা নিয়েছি, কষ্ট করে নিয়েছি, কেন? কারণ কি, বাড়িতে মাই একা আর্নিং করতো, আর মার মাসে ইনকাম ছিল 2700 টাকা। বাচ্চা টাকার কাজ করতো, আয়া যেটা বলে 2700 টাকা কামাতো। তো ওই 2700 টাকা দিয়ে ঘরে খাওয়া দাওয়া, তারপরে আমার এই ফুটানি মার্কা শ্যাম্পু, সব তো পসিবল না বস। তার মধ্যে এখন বাবা যখন চলে গেছিল, পালিয়ে গেছিল মালটা, এই ওয়ার্ডটা বেরায় না, মুখ কাছে বেরিয়ে গেল কেন। তো যাই হোক, 4 লাখ টাকা দেনায় রেখে গেছে, মাকে সেটাও মেটাতে হচ্ছে। সেই ইনকাম তো একটাই, 2700 টাকা, কি করে পসিবল? তার মধ্যে আমি শ্যাম্পু কিনছি, তার মধ্যে ব্যালেন্স ভরার জন্য প্রত্যেক 2 দিন 3 দিন অন্তর অন্তর মার ব্যাগ থেকে আমি 20 টাকা 30 টাকা 50 টাকা করে চুরি করে দিই। খারাপ লাগতো বস। আজকে আমি হেসে বলছি, কিন্তু তখন হাসি পেত না, তখন আমার নিজেকে হিজড়ে মনে হতো, কারণ মার প্রবলেম বুঝতে পারছি না, বিশাল খারাপ লাগতো। তখন আমি জিনিস ভাবতো যে এই খারাপ লাগাটা তুমি কি করবো, আমার তো করার কিছু নেই। নয় খারাপ লাগাটাকে আপন মানিয়ে নেবো, নয় কষ্ট পাবো, আর যার জন্য খারাপ লাগে সেটাকে আমি ছেড়ে দেবো। আদারওয়াইজ খারাপ লাগছে কেন? কারণ টাকার দরকার, তাহলে টাকা কামাবো। মার কেন খারাপ লাগছে, মা কেন গালাগালি দিচ্ছে? একটা মা তার সন্তানকে কোনো গালাগালি দেবে না, দিতে চায় না। দিচ্ছে কেন? কারণ তাকে অনেক কিছু ফেস করছে, তার মেন্টাল প্রেশার অনেক বেশি। আমরা যেই পরিবারে থাকতাম, সেই পরিবারে দোষ ছিল আমার মার, পালিয়ে গেছে আমার বাপ, দোষ আমার মার। সে অন্য কাউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, দোষ আমার মায়ের। কেন? আমার মা হয়তো ভালো ছিল না, ওই জন্য পালিয়ে গেছে। বাহ, তাদের মেন্টাল প্রেশার আছে। তার মেয়ে 2-2 বার সুসাইড করতে গেছে, সেই মেন্টাল প্রেশার আছে, কিছু করতে পারছে না, পড়াশোনা করছে মেয়ে। আমার দিদি জিওগ্রাফি অনার্স নিয়ে পড়তো, তো অনার্স পেপারে পড়ে দিদির কাছে মানে পড়াশোনা মানে জীবনের থেকে বেশি ওটা আছে, এগুলো আছে, মেন্টাল প্রেশার। তার মধ্যে আমি টাকা চুরি করে নিয়ে নিচ্ছি, আমার টাকা লাগবে, আমার লাগবেই। নয় আমাকে স্মার্ট বলে ছেড়ে পালাতে হবে, আর না আমাকে স্মার্ট বলে করে পয়সা কামাতে হবে। কোনটা করে?
শুনতে খুব ভালো লাগতো।